Bismillahirrahmanirrahim. Experiment number 6, generation of PWM signals using ICTL494. We will discuss how to generate PWM signal using TL494 in push-pull mode. You discuss single-ended mode in previous lab. Today we will study how to select push-pull mode and how to select PWM signal, how to generate signals in push-pull mode, how to set frequency, peak value, and how to vary duty cycle of the output signal in push-pull mode. So we have studied the pin configuration in detail in previous lab. Also, we have discussed the lower and upper value for the different parameters. We have studied how to select single-ended mode and what will be the waveform of the signals in single-ended mode. You can see that to select single-ended mode, what we will do, we will connect the output control pin, pin number 13, with a fixed 15 volt DC supply, with a ground terminal, and the waveform you can see from the figure that if output 1 is low, the output 2 will also be low, and if output 1 is high, the output 2 will also be low. The formula for frequency in single-ended mode is equal to 1 by RT/CT. F naught is equal to 1 by RT/CT, means we can set the output frequency with the help of RT and CT, with the help of external resistors and capacitor that we will connect with pin 5 and 6. The peak value of the output we can set it with the help of the DC voltage that we will apply at pin 12, and the dead time we can set with the help of the variable supply that we will connect with pin number 4. We will discuss these all in previous lab. Today we will study how to select push-pull mode. So to select push-pull mode, what we will do, we will connect pin number 13 with the constant 5 volt battery, or we will connect pin number 13 with pin number 14. So it's now your choice whether you connect pin 13 with a constant 5 volt external supply, or you connect pin 13 with 14. But if pin 13 is connected with pin 14, or it is connected with a constant 5 volt supply, IC will operate in push-pull mode, and if pin 13 is connected with the ground terminal, the IC will operate in single-ended mode. So what will be the waveform if IC is in push-pull mode? You can see from the figure that if output 1 is low, so you can see the output 2 will also be low, means for a small interval of time, if output 1 is low, the output 2 will also be low. Then output 1 will become high, but output 2 will remain low for half of the period. So clearly you can see from the waveform that for a small interval of time, both the outputs will be low. Then one of the input will become high, one of the output will become high, the other output will remain low. So, and the same for the next half cycle, and in this way the signal will repeat itself. So you can see the difference in the waveform in single-ended mode and push-pull mode from figure. And what will be the frequency? The frequency in push-pull mode will be equal to 1 by 2 RT/CT.
means a frequency in single-ended mode is 2 kilohertz, and if we are using the same resistor and capacitor, the frequency in push-pull mode will be equal to 1 kilohertz. So it will be equal to half of the frequency in single-ended mode. But we can set the output frequency to any value in this range, this 1 kilohertz to 300 kilohertz, using RT and CT resistor and capacitor, using RT resistor and CT capacitor. So now we have also discussed how to use transistors in common emitter and emitter follow-on configuration. The same we can do in push-pull mode. In push-pull mode, we can use the transistor in common emitter configuration and emitter follow-on configuration. To use transistor in common emitter configuration, what we will do, we will connect 470 ohm resistor with the collector pin, and we will connect emitter terminal with the ground. And in emitter follower configuration, we will connect 470 ohm resistor with the emitter terminal and collector terminal with the VCC pin. We discussed this in previous lab. It's the same in push-pull mode. So the difference you can see from the waveform that in single-ended mode the signal are in सर phase. सिर्फ सर दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे उसके? क्या? ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस लैब जैसे होंगे या? जी बिल्कुल, हाँ, दोनों प्रीवियस लैब जैसे होंगी, लेकिन आउटपुट वेवफॉर्म्स में फ़र्क होगा। ठीक है, वेवफॉर्म अभी हम सिमुलेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देयर विल बी डिफरेंस इन द आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे पुश पुल मोड में तो वी विल बी हमें इस तरह की वेवफॉर्म मिलेंगी जो कि आप फिगर से देख सकते हो पुश पुल मोड में। और अगर हम सिंगल हैंडेड मोड में यूज़ करेंगे तो द सिग्नल दैट वी विल बी गेटिंग विल बी इन फेज। बाकी इसको हम अगर हम पुश पुल मोड में यूज़ कर रहे हैं इसी को, तो हम ट्रांजिस्टर को कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन या इमिटर फॉलोअर कन्फिग्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। कॉमन इमिटर में यूज़ करेंगे तो फिर हमें किस तरह की वेव फॉर्म मिलेंगी इसको हम सिमुलेशन में देखेंगे। और अगर इमिटर फॉलोअर कन्फिग्रेशन में यूज़ करेंगे तो फिर हमें आउटपुट पे किस तरह की वेव फॉर्म मिलेंगी। वी विल सी दिस इन सिमुलेशन। ठीक है, तो let me show you the simulation. सर उसके पिन वगैरह कनेक्शन भी सेम उस तरह होगी? जी जी बिल्कुल, सिर्फ फर्क क्या होगा, ओनली डिफरेंस विल बी कि हमने आउटपुट कंट्रोल पिन को पुश पुल मोड के लिए कनेक्ट करना होगा 5 वोल्ट सप्लाई के साथ, और सिंगल हेडेड मोड के लिए 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी पुश पुल मोड में वो क्या होगी, वो कि इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन सिंगल हैंडेड मोड, या जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी के लिए पुश पुल मोड में, इट इज़ इक्वल टू 1/2 RTCT, while formula for frequency in single-ended mode is 1/RTCT. तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी में देर विल बी फ़र्क होगा। ठीक है, और यानी डिफरेंस यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर सिंगल हैंडेड मोड में 5 किलो हार्ट्ज है तो इन पुश पुल मोड इट विल बी 2.5 किलो हार्ट्ज। ठीक है, और पीक वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, पीक वैल्यू भी जिस तरह हम VCC जो वोल्टेज हम VCC पिन पे अप्लाई करेंगे दैट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट सिग्नल अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और सर ये पिन पर हम जीरो से कनेक्ट करेंगे, आपने क्या कर जीरो से कनेक्ट करेंगे या तो? जीरो से कनेक्ट करेंगे तो फिर अगर हमने सिंगल एंडेड मोड सेलेक्ट करना है तो फिर हम जीरो से कनेक्ट करेंगे पिन 13 को, और अगर हमने पुश पुल मोड सेलेक्ट करना है तो फिर पिन 13 को 5 वोल्ट कांस्टेंट DC बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, या पिन नंबर 14 के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी ये सिमुलेशन से क्लियर हो जाएगा आपको।
सर एंड रिजल्ट्स में कोई फर्क तो नहीं आएगा ना, लाइक अगर आए- हम सिंगल एंडेड मोड में यूज करें या दूसरे में जो पुश पुल मोड है? नहीं, फर्क आएगा ना, फर्क आएगा। देखिए ना, वेव फॉर्म में फर्क आएगा। इस फिगर में अगर आप देखें ना, जो सिंगल एंडेड मोड में क्या होंगी सिग्नल, क्या होंगी वो, अगर एक हाई है तो सेकंड सिग्नल विल आल्सो बी हाई, और अगर यानी जो फर्स्ट आउटपुट है अगर वो लो है, दी सेकंड आउटपुट आल्सो विल बी लो। लेकिन पुश पुल मोड में क्या है, यहाँ पे देखें, थोड़ी देर के लिए एक आउटपुट 1 और आउटपुट 2 जो है वो लो रहेंगी, ठीक है। फिर आउटपुट 1 जो है वो हाई हो जाएगा, लेकिन आउटपुट 2 विल रिमेन लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस है। और यानी t/2 तक फिर आउटपुट 1 विल रिमेन हाई एंड आउटपुट 2 विल रिमेन लो। तो अच्छा, अभी हम देखते हैं इसको। पहले मैं आपको सिंगल एंडेड मोड की आउटपुट दोबारा दिखाता हूँ, फिर पुश पुल मोड में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वेव फॉर्म में क्या फ़र्क होगा। तो लेट मी कनेक्ट पिन नंबर 13 विद द ग्राउंड, ठीक है। यानी पिन 13 को अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो IC विल ऑपरेट इन सिंगल एंडेड मोड, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने ये किया था इसको पिछली लैब में, लेकिन चला आज दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको दोनों मोड्स में डिफरेंस क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखें ना, कोई डिफरेंस नहीं है इनपुट और आउटपुट में, ठीक है ना। दोनों आउटपुट्स में, सॉरी मैं इनपुट और आउटपुट की बात कर रहा हूँ, दोनों आउटपुट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों की पीक वैल्यू सेम है, दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी सेम है, ठीक है। और आल्सो अगर एक इनपुट यानी अगर एक आउटपुट लो है तो द सेकंड इज आल्सो लो, और अगर वन इनपुट इज हाई द अदर आउटपुट इज आल्सो हाई। और यहाँ पे हमने बात की थी कि जो ड्यूटी साइकिल है that we can change it by varying this varying the supply that we connected with pin 4। हम इस सप्लाई को चेंज करेंगे, ठीक है, तो फिर जो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। इसको 2 कर देंगे तो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू क्या होगी, अब देखें ड्यूटी साइकिल की वैल्यू क्या हुई है, वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। लेकिन अगेन अगर हम दोनों सिग्नल्स को कंपेयर करें तो दे आर सेम, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। दिस इज these are the waveforms in single ended mode, ठीक है। यानी IC जब सिंगल एंडेड मोड में होगी तो फिर हमें इस तरह की वेवफॉर्म मिलेगी आउटपुट पर। और हमने इसमें कहा था कि we can set frequency to any value with the help of RT/CT. We can set the peak value to any value between 7 and 40 volt with the help of VS. And we can set the duty cycle from 0% to 97% with the help of this V reference voltage, ठीक है ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो सर। ठीक है। अच्छा, अब दिखाता हूँ कि पुश पुल मोड में हमें किस तरह की वेव फॉर्म मिलेंगी आउटपुट पे। सो फॉर पुश पुल मोड हम क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट पिन 13 विद द पिन 14, ठीक है। जो आउटपुट कंट्रोल पिन है इसको हम कनेक्ट करेंगे पिन 14 के साथ। और कुछ चेंजेस मैं करने लगा हूँ, ठीक है, इसकी तरफ। And we want to use transistors in emitter follower configuration, ठीक है। तो emitter follower configuration के लिए हम क्या करेंगे, C1 C2 को हम कनेक्ट करेंगे VCC पिन के साथ, और रजिस्टर्स को हम कनेक्ट करेंगे विद
emitter pen. ठीक है। अच्छा जी, अब now let me show you the waveforms. अब you clearly you can see that there is a difference in the signal. ठीक है। फ्रीक्वेंसी अब अगर हम इसकी कंपेयर करें तो इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट वी विल बी गेटिंग इन सिंगल एंडेड मोड। ठीक है। पीक वैल्यूज हमें तकरीबन सेम ही मिलेगी। जो यहाँ पे अगर आप देखें कि एक डिवीजन 5 वोल्ट का है तो इट इज़ ऑलमोस्ट जो कंप्लीट साइकिल है वो 2 डिवीजन में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। या जो पीक वैल्यू है, ठीक है, इट इज़ 10 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि VCC की वैल्यू हमने 10 रखी है। ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी जो है अगर आप कंपेयर करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट वी विल बी गेटिंग इन सिंगल एंडेड मोड। और यहाँ पे आप देखें कि अगर हम एक हाफ टाइम पीरियड के लिए सिग्नल को देखें तो दोनों सिग्नल्स क्या होंगे, थोड़ी देर के लिए लो होंगे। ठीक है। शॉर्ट इंटरवल के लिए, जिसको हम डेड टाइम कहते हैं। ठीक है। फिर एक सिग्नल क्या हो जाएगा, वो हाई होगा। ठीक है। और थोड़ी देर के लिए हाई रहेगा। और सेकंड सिग्नल उस वक्त क्या होगा, वो लो ही रहेगा। फिर क्या होंगे, नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या होंगे, दोनों सिग्नल्स लो रहेंगे। ठीक है। फिर फर्स्ट जो सिग्नल है वो क्या होगा, वो हाई हो जाएगा और सेकंड सिग्नल लो ही रहेगा। सो दिस वे द सिग्नल विल रिपीट इटसेल्फ। और अगर टाइम पीरियड को हमने मेजर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। सॉरी, डेड टाइम को। ठीक है। वेरी करना हो डेड टाइम को, दैट वी कैन वेरी द हेल्प ऑफ दिस VREF सप्लाई। इसको वेरी भी कर लेते हैं। ठीक है। कम कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं। लेट्स सी कि क्या टिल यू कैन सी के जो डेड टाइम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे
अच्छा अब देखें, अगर हम 0 सेकंड पे 0 से लेकर 200 माइक्रो सेकंड तक दोनों आउटपुट्स क्या है वो लो हैं, ठीक है, यानी दोनों की वैल्यू क्या है वो 0 है। और फिर 200 माइक्रो सेकंड पे आउटपुट 1 की वैल्यू जो है वो क्या है, वो तकरीबन 9.5 वोल्ट है, यानी क्लोज टू 10 वोल्ट। और आउटपुट 2 की वैल्यू क्या है वो 0 है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ तक T/2 तक अगर हम सिग्नल को देखें तो 200 माइक्रो सेकंड तक आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 आर लो। आफ्टर 200 माइक्रो सेकंड आउटपुट 1 इज हाई एंड आउटपुट 2 इज लो। और ये तकरीबन अगर कितनी देर के लिए आउटपुट 1 जो है वो हाई है, 200 माइक्रो सेकंड, और अगर इस टाइम को हम ले लें तकरीबन हाफ बनेगा 500, तो ये तकरीबन 550, ठीक है, तो 550 और 200 तो तकरीबन 350, ठीक है, तो 350 तकरीबन 300 ही कंसिडर कर लें, यानी 200 माइक्रो सेकंड के लिए both the outputs are low, and for 300 microsecond both one signal is high and the other is low. And similarly for again for T/2 से T तक अगर हम देखेंगे तो for 200 microsecond output both the outputs will be low, then output 1 will be high for 300 microsecond and so on, ठीक है। और ये जो 200 माइक्रोसेकंड है, दिस इज द डेड टाइम इन द सिग्नल, कि दोनों आउटपुट्स क्या होंगी वो सेम होंगी या दोनों क्या होंगी वो लो होंगी, ठीक है। तो और इस डेड टाइम को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट बाय वेरिंग दिस वी रेफरेंस वोल्टेज, जिससे ऑब्वियसली ड्यूटी साइकिल भी चेंज होगा जब हम डेड टाइम को चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी वो चेंज होंगी। ड्यूटी साइकिल क्यों चेंज होगा, क्योंकि ड्यूटी साइकिल को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि it is the ratio of on time to the total time. तो अगर हम डेड टाइम को इंक्रीज करेंगे तो द ड्यूटी साइकिल विल आल्सो इंक्रीज, सॉरी द डेड टाइम को इंक्रीज करेंगे तो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है ना। यानी जो ड्यूरेशन है जिसमें सिग्नल की वैल्यू हाई होगी वो क्या होगा, इट विल डिक्रीजेस जब हम क्या करेंगे, इट विल डिक्रीज जब हम डेड टाइम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे इसको बढ़ा के देख लेंगे, लेट्स हम इसको कर लेते हैं 2.5 ना, सीख है। अब आप देखें कि डेड टाइम क्या हुआ है अभी, ये इट इज रीचेस टू ऑलमोस्ट 400 माइक्रो सेकेंड, 450 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। और ऑन टाइम जो है वो कम होगा, ठीक है। तो अगर ऑन टाइम की वैल्यू क्या कम होगी, ठीक है, टाइम पीरियड पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इट मीन्स दैट द ड्यूटी साइकिल विल डिक्रीज। लेकिन मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल जो हमें इसमें मिल सकता है दैट इज इक्वल टू 50%, और जो मिनिमम है दैट इज इक्वल टू 0%, ठीक है ना। और लेकिन जो सिंगल एंडेड मोड है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ड्यूटी साइकिल को वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 100%। यहाँ पे क्या है, आइडियली स्पीकिंग जो ड्यूटी साइकिल की मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0, जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 50%। तो डिपेंड ऑन एप्लीकेशन, वो हमें आगे आपको जब हम इस पढ़ेंगे कन्वर्टर्स और इन्वर्टर्स तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कि हमने किस मोड में इसको यूज़ करना है, और फिर हमने वेरी कैसे करना है ड्यूटी साइकिल को, ठीक है। तो you should know okay, how to vary the dead time and duty cycle of the output waveforms, how to select single-ended mode and push-pull mode, what will be the frequency in single-ended mode and push-pull mode, yeah, how to set frequency in single-ended mode and push-pull mode, and how to set peak value of input of output signal in single-ended mode and push-pull mode, ठीक है। तो पीक को अगर आपने वेरी करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस
VS पेन पे वोल्टेज को वेरी करना होगा। इसको मैं अगर 20 करूँगा, ठीक है, अब आप देखें वैल्यू तकरीबन 10 के करीब है, तो नाउ इट विल बी क्लोज टू 20, तो पीक में जो मिलेगा इट विल बी क्लोज टू 24, तो अप्रॉक्सीमेट थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, ठीक है, लेकिन वी कैन इग्नोर दिस डिफरेंस। जी गाइस, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है ना। तो मेन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने सिंगल एंडेड मोड और पुश पुल मोड को कैसे सिलेक्ट करना है, पीक वैल्यू को कैसे वेरी करना है, और डेड टाइम को कैसे वेरी करना है, और फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करना है, ठीक है। तो RT और CT की वैल्यूज चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल विल वेरी, ठीक है। अब इस तरह, अब ये जो वेवफॉर्म है, अगर हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करेंगे इमीटर फॉलो ऑन कॉन्फ़िगरेशन में, तो फिर हमें इस तरह की वेवफॉर्म मिलेंगे आउटपुट में, ठीक है। अगर हम ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करेंगे इमीटर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, फिर हमें किस तरह की वेवफॉर्म मिलेंगी, लेट मी शो यू दैट। तो इसको मैं अंडू करता हूँ ताकि रिकनेक्ट। तो कॉमन इमीटर के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे C1 और C2 के साथ, और एमीटर को कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ। ठीक है, एंड नाउ C1 and C2 will be our output pins. ठीक है, now let's see कि हमें किस तरह की आउटपुट मिलेगी। अब अगर आप देखें ना, तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि अब दोनों आउटपुट जो है वो क्या होंगे, दे विल बी हाई फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जितना डेड टाइम, जो डेड जिसको हम डेड टाइम कहेंगे, ठीक है, और डेड टाइम को भी हम वेरी कर सकते हैं विद द दिस VREF। तो बोथ द आउटपुट्स विल बी हाई, ठीक है। जब वाइल अगर हम उसमें यूज़ कर लेंगे इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में, तो फिर स्मॉल इंटरवल के लिए क्या होंगे, दोनों आउटपुट्स की वैल्यू क्या होंगी, वो लो होंगी, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम यूज़ करेंगे इसको इमीटर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, फिर क्या होंगी, दोनों आउटपुट्स की वैल्यू क्या होंगी, वो हाई होंगी फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर एक आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो लो हो जाएगी, ठीक है, और दूसरे आउटपुट की वैल्यू हाई ही रहेगी। फिर T/2 तक, ठीक है, यानी T/2 तक थोड़ी देर के लिए दोनों आउटपुट्स हाई रहेंगे, ठीक है। फिर एक की वैल्यू लो हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, वो हाई ही रहेगी। T/2 के बाद क्या होगा, दोनों आउटपुट्स की वैल्यू फिर थोड़ी देर के लिए क्या होंगी, वो हाई होंगी, ठीक है। फिर एक आउटपुट की वैल्यू लो हो जाएगी और दूसरी आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हाई ही रहेगी। लेकिन बिल्कुल यानी जो सिग्नल्स हमें इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में मिलेंगी, ठीक है, उसके बिल्कुल अपोजिट हमें सिग्नल्स मिलेंगी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो डिपेंड करता है कि अब हमें किस तरह की सिग्नल्स चाहिए, ठीक है। बट यू शुड नो के हाउ टू जनरेट such type of signals using TL494, ठीक है। सिर्फ ड्यूटी साइकिल को हम VCC के थ्रू कंट्रोल करेंगे? नहीं, ड्यूटी साइकिल को हम कंट्रोल करेंगे, हमने इसको कहा है VREF कहा है, ठीक है। जो पिन 4 के साथ जो हम सप्लाई लगाएंगे, वेरिएबल सप्लाई, उससे हम कंट्रोल करेंगे ड्यूटी साइकिल को। VCC पिन के साथ जो सप्लाई लगाई है, उससे पीक वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। तो जो वोल्टेज हम VCC पिन पे अप्लाई करेंगे, that will be the value of the
दैट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट सिग्नल। ठीक है, जो भी वैल्यू हम 10 रखते हैं तो पीक वैल्यू हमें 10 मिलेगी, 40 रखते हैं तो हमें पीक वैल्यू आउटपुट पे 40 मिलेगी। ठीक है, ड्यूटी साइकिल को पिन 4 वोल्टेज जिसको हमने कहा था कि 0 वोल्ट से 3.3 वोल्ट तक, ठीक है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 3.3। तो पिन 4 पे वोल्टेज वेरी करेंगे तो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू चेंज होगी। जी गाइस, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, सबको समझ आ गई है? सर इमिटर फॉलोअर में वीएस इंक्रीज करने से ड्यूटी साइकिल डिक्रीज होगा ना? इमीटर फॉलोअर में वीएस नहीं, वीएस नहीं, वीरेफ इंक्रीज करने से ड्यूटी साइकिल डिक्रीज होगा। यस, ठीक, ओके सर। और इसमें क्या होगा, इसमें मेरे ख्याल में अपोजिट, यानी इंक्रीज करने से कॉमन इमीटर में वीरेफ इंक्रीज करने से ड्यूटी साइकिल इंक्रीज होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें मेरे ख्याल में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 50% और जो मैक्सिमम होगी दैट विल बी 100%। ठीक है ना? इमीटर फॉलोअर में मिनिमम वैल्यू होगी ड्यूटी साइकिल की 0% और मैक्सिमम 50। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में मिनिमम वैल्यू होगी ड्यूटी साइकिल की 50% और मैक्सिमम होगी 100%। इसको एक मिनट, अगर हम इसको 0 कर लें, ठीक है, लेट्स सी के 0 पे हमें क्या आउटपुट मिलती। हाँ बिल्कुल, देखें हाई है। ठीक है, और अगर इसको 2.8 कर लेते हैं मैक्सिमम के करीब, तो लेट्स सी के तकरीबन लो है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सिग्नल जो है वो लो है, एंड फॉर द रिमेनिंग इट इज हाई। ठीक है, बिल्कुल। यानी इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज 100%, और जो जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है दैट इज 0%, दैट इज 50%। यानी हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, नीड तकरीबन हमें डेड टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो रिक्वायर्ड होता है 10% से 20% के दरमियान। तो 20% तक डेड टाइम इज एनफ फॉर इन्वर्टर सर्किट्स। लेकिन चलें, ये आगे जब हम इसको यूज़ करेंगे स्विचिंग पर्पस के लिए तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इन्हीं हाफ आपको ये आना चाहिए कि आपने सिंगल एंडेड मोड और पुश पुल मोड को कैसे सेलेक्ट करना है और पीक वैल्यू, ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करना है। ठीक है ना? यूर टास्क इज टू, आपने क्या करना है कि वीसीसी की वैल्यू आपने रखनी है 10 वोल्ट। ठीक है, आपने वेरी करना है वी रेफ वोल्टेज को, और इन डिफरेंट वैल्यूज पे आपने देखना है कि आपको फ्रिक्वेंसी क्या मिलती है आउटपुट पे और
डेड टाइम की वैल्यू क्या मिलती है कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन में और इमिटर फॉलोअर कन्फिग्रेशन। यूज़ आपने इसको करना है पुश पुल मोड में, और आपने देखना है कि अगर आप ट्रांजिस्टर को कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन में यूज़ कर दे तो फिर आपको 0.51 वोल्ट 1.52 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज पे आपको डेड टाइम की वैल्यू क्या मिलती है, और अगर आप इमिटर फॉलोअर में यूज़ कर रहे हैं फिर आपको डेड टाइम की क्या वैल्यू मिलती है। ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रिक्वेंसी को भी नोट करना है कि क्या वी रेफ वेरी करने से फ्रिक्वेंसी की वैल्यू चेंज होती है।